डायमेंशन ऑफ द ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेसिक फॉर्मूला देखो, बेसिक फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप समझ जाओ इसको, के की जगह क्या लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। इसको फिर लिखोगे ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है F इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखोगे, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज F इंटू आर स्क्वायर। व्हाट इज F? F इज द फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन mlt-2। आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मींस L स्क्वायर। फाइनली वी विल सॉल्व इट, योर आंसर विल बी ml⁻³ t-2। ln 1 plus x series, just learn it. The formula is given by x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x4 by 4 plus up to infinity. बेसिकली आपको क्या यूज होगा, मेनली आपके लिए ln 2 का और फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा। तो ln 2 का मतलब x की वैल्यू क्या रख रहे हो, यहाँ पे 1 रख रहे हो, तो क्या फॉर्म आंसर आएगा 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 and so on। इस तरह से एक सीरीज चलती है। और ln 2 की वैल्यू कितनी होती है, ln 2 is written as 0.693। series of ln 1 minus x, ln 1 minus x is written as minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x4 by 4 dash 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 up to infinity। ln 2 is I have discussed with you, that is 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 up to infinity, it is known as the ln 2। e power x is written as 1 plus x upon factorial 1, that is 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus dash 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 up to infinity, this is factorial 3। e power minus x is 1 minus x upon factorial 1, that is 1 plus x square upon factorial 2, then plus के बाद minus x cube upon factorial 3 plus dash 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 up to infinity। 1 plus 2 plus 3 up to n, we will write it is given by n into n plus 1 divided by 2। 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square, it will be written as n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube। देखो आपको 1 plus 2 plus 3 up to n का फॉर्मूला याद है, n into n plus 1 divided by 2, उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसका आंसर, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube is known as n into n plus 1 divided by 2 का whole square। This is the answer of this 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube। 1 plus x raised to power n, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 1 plus nx plus n into n minus 1 upon factorial 2 x square plus n into n minus 1 n minus 2 factorial 3 x cube प्लस डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको चेंज मिल सकता है, कहीं कहीं पे क्या लिखेंगे वो फैक्टोरियल 2 को ओपन करके क्या लिख देंगे 2 into 1 इट इज गिवन बाई 2। फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 3 into 2 into 1 इट इज गिवन बाई 6। तो वहां पे आपको फॉर्मूला क्या दिखेगा 1 plus nx plus n into n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की जगह क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस n into n minus 1 n minus 2 अपॉन 6 into x क्यूब, दिस इज x क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। मेनली आपके क्या लॉजिक यूज होगा, दिस लॉजिक विल बी यूज mod of x is less than 1, then you apply the condition that higher power is negligible and then you will write in this situation 1 plus x raised to power n is known as the 1 plus nx। तो if I say 1 plus x to power n निकालो, इस सिचुएशन में when mod of x is less than 1 you will say it is given by approximation 1 plus nx, so you can say it is approximately equal to 1 plus nx। Similarly 1 minus x raised to power n को क्या लिखोगे 1 minus nx plus n into n minus 1 upon factorial 2 x square minus n into n minus 1 n minus 2 factorial 3 x cube up to infinity। factorial 2 को क्या लिखोगे 2, factorial 3 को आप क्या लिखोगे 3 into 2 into 1 is 6। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, अगर mod x is less than 1 है तो 1 minus x की पावर n बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे and you will see in this situation 1 minus x raised to power n will be written as 1 minus nx। Arithmetic mean of the x1, x2, x3 up to xn. You will say arithmetic mean is simple average. You add all the quantities x1 plus x2 plus x3 up to xn, then divided by the number of terms n, that is known as the arithmetic mean of the x1, x2, x3 up to xn. Geometric mean of the x1, x2, x3 up to xn is given by product of all the quantities x1, x2, x3
up to xn power 1 by n, that is known as the geometric mean of the x1 x2 up to xn. आपको मेनली क्या जरूरत पड़ेगी, दो नंबर गिवन होंगे. सपोज यू आर गिवन टू नंबर, वन नंबर इज a, अनदर नंबर इज b, और इनका आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना. तो यू विल राइट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर a and b इज नोन एज रूट ab, बिकॉज आपने देखो ये लॉजिक लगाया. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, a and b पावर 1 by 2 यानी स्क्वायर रूट हो गया. तो बस ये आपका एक लॉजिक आपको ध्यान रखना, दो नंबर गिवन होंगे, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा. तो आप क्या लगाओगे, रूट ab. हार्मोनिक मीन ऑफ x1 x2 up to xn, so you will write harmonic mean is known as reciprocal of 1 upon x1 plus 1 upon x2 up to 1 upon xn divided by n. This is known as the harmonic mean of these terms. आपको जनरली क्या पूछा जाता है, you have to calculate sometime harmonic mean ऑफ टू नंबर a एंड b. तो देखो आप फॉर्मूला लगाओगे, उससे पहले आप डायरेक्टली याद कर लो. आंसर क्या आना चाहिए आपका, 2ab अपॉन a प्लस b. अब हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं. हार्मोनिक मीन इज नोन एज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b डिवाइडेड बाई n. नंबर ऑफ कितने, 2. फर्स्टली वी सॉल्व दिस टर्म, दिस इज नोन एज द ab नीचे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2ab एंड दिस इज a प्लस b. अब आप इसका रेसिप्रोकल कर लो तो आपको ये मिलेगा. तो जस्ट लर्न इट, रेसिप्रोकल ऑफ दिस फॉर्मूला. और यू कैन से अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना हो a और b का, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है 2ab अपॉन a प्लस b, साइन a प्लस b और साइन a माइनस b. मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पे a प्लस माइनस b. तो फर्स्टली वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर द साइन a प्लस b. वी विल राइट इट इज नोन एज द साइन a cos b प्लस cos a साइन b. और अगर आपको साइन a माइनस b का फॉर्मूला यूज करना तो आप लोग क्या लिखोगे, साइन a cos b माइनस cos a साइन b. इन दोनों फॉर्मूले को मैं जॉइंटली यहां लिख देता हूं, साइन ए कॉस बी, प्लस के टाइम पे प्लस, माइनस के टाइम पे माइनस, सो इट इज प्लस माइनस कॉस ए साइन बी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द साइन ए प्लस माइनस बी. अगेन फॉर्मूला कॉस ए प्लस माइनस बी. फर्स्ट आई विल राइट द फॉर्मूला फॉर द कॉस ए प्लस बी. इट इज नोन एज द कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. अब मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं कॉस ए माइनस बी का. इट विल बी कॉस ए कॉस बी, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी. तो जॉइंटली इस फॉर्मूले को कैसे लिखोगे आप लोग, cos a cos b माइनस प्लस साइन ए साइन बी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos a प्लस माइनस b. tan a प्लस b और tan a माइनस b. फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर द tan a प्लस b. इट इज रिटन एज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. Similarly, formula for the tan a minus b is written as tan a minus tan b, and denominator we will write 1 plus tan a tan b. If we combine this formula here, we will write tan a plus minus b can be written as tan a plus minus tan b upon 1 minus tan a and tan b. This is the formula for the tan a plus minus b. This is basically tan a plus minus b. Sin 3a and cos 3a. Sin 3a and cos 3a का फॉर्मूला देखो मैं एक साथ दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे लर्न करना आपको. देखो sin 3a का फॉर्मूला कैसे याद करोगे, एक ट्रिक है. पहले आप 3 को बाहर ले लो और दूसरी बार sin का क्यूब लगा लो. cos 3 में क्या लिखोगे, पहले आप क्यूब लगा लो cos पे और 3 को आगे लिख लो. अब इसको पूरा कर लो, 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए. जहां पे cos की पावर 3 आ रहा है वहां पे 4 लगाना. इट इज 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए. सो यू विल से साइन 3a इज नोन एज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए. cos 3a इज रिटन एज 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए. tan a प्लस b प्लस c, इट इज रिटन एज द tan a प्लस tan b प्लस tan c minus tan a, tan b and tan c upon 1 minus tan a, tan b minus tan b, tan c minus tan a, tan c. ये लास्ट वाले को देखो आपने यहाँ पे a इंटू बी लिखा, यहाँ पे b इंटू सी लिखा, c इंटू a लिख लो तो आपको याद इजी रह जाएगा. दिस इज tan c and tan a. sin 2 theta, it is known as the 2 sin theta cos theta. cos 2 थीटा, इसके तीनों फॉर्मूले आपको लर्न करने.
cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने छोटी क्लास में पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड यू विल गेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा। अब देखो आपको अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न है तो आपको ये तो पता ही है, tan a प्लस b इज नोन एज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अब यहाँ पे मैं ए और बी की जगह सेम कर रहा हूँ थीटा प्लस थीटा, तो कैन आई राइट tan 2 थीटा इज थीटा प्लस थीटा इज tan थीटा प्लस tan थीटा, इट इज नोन एज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, इट इज tan स्क्वायर थीटा। सो फाइनली वी विल राइट tan 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, पहले हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, d अपॉन dx x raised to power n, it is written as nx n minus 1, d upon dx e raised to power x, it is written as the e raised to power x, d by dx a raised to power x, it is written as the a raised to power x log a, d by dx ln x, it is written as 1 upon x, d by dx sin x, it is written as the cos x, d by dx cos x, it is written as minus sin x, d by dx tan x, it is written as sec square x, d by dx sin inverse x, it is written as 1 upon root 1 minus x square, d by dx cos inverse x, it is written as minus 1 upon root 1 minus x square, d by dx tan inverse x, it is written as 1 upon 1 plus x square. Now come to integration. Integration x raised to power n dx, it is written as the x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus constant of integration c. इंटीग्रेशन सब जगह कांस्टेंट इंटीग्रेशन लगाना है, अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो डेफिनेट हो तो नहीं लगाना है। ओके, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, it is written as the ln x plus c. इंटीग्रेशन e raised to power x dx, it is written as the e raised to power x. इंटीग्रेशन ax a power x written as the a power x upon ln a. Integration sin x, it is written as minus cos x. Integration cos x, it is written as sin x. Integration tan x, it is written as the minus log cos x. 1 upon root 1 minus x square। अब देखो ध्यान से देखो, इनको लर्न करने के लिए आप डिफरेंशिएशन का उल्टा कर दो। देखो डिफरेंशिएशन 1 upon root 1 minus x square को आप देखो तो क्या था, sin इनवर्स x था, तो इंटीग्रेट में 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x प्लस सी। सिमिलरली देखो यहाँ पे आओ, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, तो यू विल राइट इट इज रिटन एज कॉस इनवर्स x प्लस सी। सिमिलरली टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस सी। सेक स्क्वायर x, देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएट करते हो सेक स्क्वायर x मिलता है, तो सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करोगे तो what will you get? You will get it is known as tan x plus c. So these are the basic formula for the integration and differentiation. Sin square theta plus cos square theta is known as the 1. 1 plus tan square theta is known as sec square theta. 1 plus cot square theta is known as the cosec square theta. Log m into n, it is known as the log m plus log n. Log m divided by n, it is known as log m minus log n. Log m to the power n, power आगे ले लो, n log m, log m to the base e को आपको log 10 बेस में कन्वर्ट करना, तो you have to multiply by 2.303। बेस चेंज प्रॉपर्टी है ना, जैसे यहाँ पे बेस e में कन्वर्ट करना, किसी बेस में कन्वर्ट करना, तो e में कन्वर्ट करना, किसी में कन्वर्ट करना, मैं समझा देता हूँ। log b to the base a है, तो आप इसको एक बार लिख लो, log b अपॉन log a, और जिस बेस में कन्वर्ट करना वो बेस यहाँ लगा दो। नेक्स्ट log b to the base a पावर n, बेस में है a पावर n, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन n log b to the base a, log a base a, it is known as 1. Like if I ask you what is log 10 base 10, you will say it is known as 1. Log 1 to the base b, it is 0. Why it is 0? Just try to understand. Suppose I write log 1 to the base 10, it is 0. अब देखो log को आपको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। अगर मैं मान लेता हूँ log 1 to the base 10 की वैल्यू x है सपोज, तो यहाँ से बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो तो क्या लिखोगे, 10 raised to power x इक्वल टू 1। 10 raised to power x का वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज 10 पावर 0 इज नोन एज 1, सो log 1 to the base 10 इज नोन एज 0। अब यहाँ पे 10 की जगह कुछ भी रख लो, सपोज मैंने लिखा log 1 to the base 2, ये भी 0 होगा क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। लास्ट log n to the base 10 इक्वल टू x, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट में, व्हाट वी विल राइट
10 raised to power x is known as n. Dependent dividend rule. If it is given to us a upon b is given by p upon q, we will write a plus b upon a minus b equal to p plus q upon p minus q. अब इसको यूज कैसे करना है? सपोज आपको कहीं पे इक्वेशन आ रही है a अपॉन b इज गिवन बाई 5/3 और आपको जरूरत है, किसकी जरूरत है? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी. तो वैसे सोल्व करोगे तो काफी टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट रूल लगाओ, कंपेंड डिविडेंड रूल. तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी को क्या लिखोगे? 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3. तो इट इज गिवन बाई 8/2. 8/2 इज नोन एज 4. तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विद द हेल्प ऑफ द कंपेंड डिविडेंड रूल. जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द AP सीरीज, वी कैन राइट इट a plus d, a plus 2d and so on. What is a? A is known as the first term, d is known as the common difference. No, what is the nth term of the AP? nth term को क्या लिखोगे फॉर्मूला? a plus n minus 1 into d. Sum of the n terms in AP. इसके दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं. एक तो आप लिखोगे n by 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d. और अगर आपको डायरेक्ट लास्ट टर्म पता है तो आप क्या लिखोगे? n by 2 into bracket first term plus last term. Let the last term is L. So you can write in this way also, n by 2 first term plus last term. So these are the formula for arithmetic progression series. Generalized form of the geometrical progression GP, we will write A, AR, AR square, AR power n and so on. और R को कैसे निकालोगे? कहीं पे second term divided by first term, that is known as the R. उसको आप क्या बोलते हो? कॉमन रेशियो. आपको निकालना nth टर्म ऑफ जीपी. दिस इज जीपी. तो nth टर्म ऑफ द जीपी विल बी रिटन एज a r रेज़ टू पावर n माइनस 1. a क्या है? फर्स्ट टर्म. r आपने निकाल लिया कॉमन रेशियो, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट. सम ऑफ द n टर्म्स इन जीपी. इसके दो फॉर्मूले आपको लर्न करने. एक तो क्या होगा? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ये कब लगेगा? व्हेन r इज ग्रेटर देन 1. एंड इफ r इज लेस देन 1 देन यू विल यूज द फॉर्मूला sm इज नोन एज a 1 minus r raised to power n upon 1 minus r. This formula is applicable when r is less than 1. Sum of infinite terms in GP. इसका बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे. a upon 1 minus r. What is a? First term. What is r? Common ratio. Theta minus cos theta is 1/5. Then what is the value of the theta? जब भी ऐसी सिचुएशन आए 1/5, 3/5, 4/5, आपको पता दो एंगल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री. आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो. यहाँ पे आप 53 डिग्री लिख लो. ऑफ कोर्स ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. यहाँ पे आप 5 लिखते हो, यहाँ पे 3 लिखते हो, 53 है, और यहाँ पे आप 4 लिखते हो. इफ आई राइट द वैल्यू ऑफ द साइन 37, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. साइन 37 की वैल्यू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5. और कॉस 37 की वैल्यू क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5. अब देखो 3/5 माइनस 4/5 करोगे तो माइनस 1/5 होगा, यानी 37 डिग्री तो आंसर नहीं हो सकता है. अब हम लोग 53 डिग्री पे चलते हैं. साइन 53 डिग्री इज रिटर्न एज द 4/5 एंड कॉस 53 इज रिटर्न एज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5. तो 4/5 माइनस 3/5 इज 1/5. इट मींस थीटा की वैल्यू कितनी है? 53 डिग्री. तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे? 53 डिग्री. एनर्जी इक्विवेलेंट टू वन एटॉमिक मास यूनिट इज नोन एज द 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आया कैसे? आप लोगों को फॉर्मूला पता है, E = mc², जो कि आइंस्टीन ने दिया था. m के जगह क्या लिखोगे? मास कितना है? 1 एटॉमिक मास यूनिट. तो 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने किलोग्राम होते हैं? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम. तो मैं लिख देता हूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट इज नोन एज 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम. नो c इज द स्पीड ऑफ लाइट. ये तो आपको विजिबल है. इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 का होल स्क्वायर. अब हम इसको सोल्व करते हैं. तो आप क्या लिखोगे? 1.66 इंटू 3 3 जा 9. तो 1.66 इंटू 3 3 जा 9, 10 रेज़ टू पावर -27, 8 2 जा 16 प्लस 16, यानी आपको क्या मिल गया? 1.66 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 में से 16 गया तो क्या बच गया? -11. लेकिन ये आंसर किस में आएगा? आपका जूल्स में आएगा. अब अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप क्या लिखोगे? 1.66 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19. ये आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. लेकिन यहाँ तो ये किस में पूछ रहा है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछ रहा है. तो अगेन व्हाट यू विल डू? 1.66 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -31
अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मेगा का मतलब कितना हुआ 10 की पावर 6, तो आप 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो देखो भी कितना बचा, इट इज 1.66 इंटू 9 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर, देखो माइनस 11 ऊपर है, नीचे से माइनस 6 आएगा, कितना बच गया माइनस 17, नीचे से माइनस 19 ऊपर आगे कितना हो जाएगा प्लस 19, यानी क्या बच गया 10 की पावर 2, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So this is the answer of the one atomic mass unit converged into mega electron volt energy. Rest mass of the electron in kilogram you have to write, that is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो आप क्या लिखोगे, इट इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अवोगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23. इट इज द वैल्यू ऑफ द अवोगाद्रो कांस्टेंट. स्टीफन कांस्टेंट, वी नो स्टीफन कांस्टेंट कैसे निकालोगे, इंटेंसिटी इज गिवन बाय सिग्मा टी की पावर 4. टी क्या है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और सिग्मा की आपको वैल्यू लर्न करनी है, कितनी हो जाएगी 5.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 न्यूटन पर मीटर पर केल्विन की पावर 4. वेन्स कांस्टेंट, द वैल्यू इज गिवन बाय 2b, इसको b से लिखते हैं 2.89 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 मीटर केल्विन. वैल्यू ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट एज पर द एनसीईआरटी यू विल से इट इज 1.097 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7 पर मीटर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज नोन एज द 273 केल्विन या 273.16 केल्विन. अगर आप सेल्सियस में लिखोगे तो क्या लिखोगे 0 डिग्री सेल्सियस या 0.01 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस भी आप लोग लिख सकते हैं. मोलर वॉल्यूम में आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे लिखा जाता है, इट इज रिटन एज द 22.4 लीटर. और अगर आपको क्यूबिक मीटर में लिखना है तो क्या लिखोगे 22.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 क्यूबिक मीटर पर मोल. तो 1 मोल का आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए. साइन 2n पाई प्लस थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, जब n की वैल्यू आप 1 पुट करते हो तो 2 पाई प्लस थीटा, यानी घूम फिर के आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए. n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 4 पाई प्लस 2 थीटा, 2 राउंड लगा के वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए. तो आप ये जितनी भी वैल्यूज देख रहे हो सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आपको ASTC रूल पता है, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव. इट मीन साइन 2n पाई प्लस थीटा इज ऑल्सो नोन एज द साइन थीटा, cos 2n पाई प्लस थीटा इज नोन एज द cos थीटा, tan 2n प्लस पाई प्लस थीटा इज नोन एज द tan थीटा. फॉर थीटा स्मॉल मींस लेस देन 5 डिग्री, इसका मतलब स्मॉल एंगल की बात कर रहा है. तो हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे. इन दैट सिचुएशन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 and tan theta is approximately equal to theta. One thing also I want to tell you, theta must be measured in radian. ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए. log to the base 10 is known as 0.3010, log 3 to the base 10 is known as 0.4771, और ln2 की वैल्यू याद रखना, ln2 क्या होगा 0.693, और इसको मैं 3010 लिख लेता हूँ. log 10 is known as 1, log 100 is known as 2, log 1000 is known as 3. आप ऐसे रख लो, जितने जीरो होते हैं तो लोग, यहाँ पे जीरो एक बार है तो एक और एक आ गया, यहाँ पे जीरो 2 टाइम्स है तो log 100 क्या हो गया 2, यहाँ पे जीरो 3 टाइम्स है तो log 1000 कितना हो गया 3. सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ln e पावर 1, you will say it is 1, ln e power 2 you will say it is 2, ln e power 3 you will say it is 3. Maximum and minimum value of the function a cos theta plus b sin theta. Maximum value of this function will be written as root a square plus b square, and minimum value of this function is written as minus root a square plus b square. Maximum and minimum value of the function a cos square theta plus b sin square theta. अब सबसे पहले तो आपको इसमें a और b में जो मिनिमम है वो देख लो, जो मैक्सिमम है वो देख लो. If I say I have to write the maximum value, it may be a और b, जो भी ज्यादा हो that is the maximum value. Similarly minimum value की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा a या b, जो भी कम हो that is the minimum value. 1 upon pi is known as 0.32 and pi square is known as 10. अब देखो यहाँ पे हम लोग वही अपना ASTC रूल रखेंगे. ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव. अब देखो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 90 है प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड में देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, ये तो आपको ध्यान रहेगा, यानी साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा और कोसेक का आंसर पॉजिटिव आएगा. कोसेक लिखा नहीं होता तो पॉजिटिव आएगा. उसके लिए 90 प्लस थीटा में जो भी वैल्यू लिखोगे सारी की सारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव. अच्छा अब 90 और 270 में क्या होता है, जो 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस करोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा.
तो साइन 90 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस कोस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस कोट थीटा। अब देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो पक्का टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसके अलावा सब नेगेटिव होगा। तो 10 का आंसर पॉजिटिव आएगा, उसके अलावा सारे के सारे आंसर नेगेटिव आएंगे। अच्छा 180 के अंदर साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है। तो साइन 180 प्लस थीटा इज साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा इज माइनस कोस थीटा, एंड टेन 180 प्लस थीटा इज नोन एज टेन थीटा। सिमिलरली वी आर कैलकुलेटिंग दिस 180 माइनस थीटा, इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, ये 180 माइनस थीटा का मतलब स्टिल यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो साइन का कन्वर्जन पॉजिटिव होगा, कोस का नेगेटिव होगा, टेन का नेगेटिव होगा। लेकिन 180 प्लस माइनस करोगे तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, और टेन टेन में रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा इज नोन एज द साइन थीटा, cos 180 minus theta is known as the minus cos theta, tan 180 minus theta is known as the minus tan theta. Similarly we will write the sin minus theta. तो minus theta का मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसके अलावा सब कुछ नेगेटिव होगा। तो cos की वैल्यू पॉजिटिव कर दो, उसके अलावा सब कुछ नेगेटिव कर दो। 180 है तो sin sin ही रहेगा, तो इट इज गिवन बाय माइनस sin थीटा। cos cos ही रहेगा, इट इज गिवन बाय माइनस प्लस cos थीटा। tan tan ही रहेगा, तो इट इज गिवन बाय tan थीटा। अब देखो हम लोग 270 प्लस थीटा की बात करते हैं। 270 प्लस थीटा, अगेन यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसके अलावा सब कुछ नेगेटिव होगा। और 90 270 में साइन का cos हो जाता है, cos का साइन हो जाता है, 10 का कोट हो जाता है। साइन 270 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos 270 प्लस थीटा इज नोन एज अ प्लस साइन थीटा, एंड tan 270 प्लस थीटा इज नोन एज द माइनस कोट थीटा। नो, अगेन वी आर सॉल्विंग दिस सिचुएशन। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मींस यू आर इन दिस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे tan और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसके अलावा जो भी होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। 270 तो कन्वर्जन में साइन का cos होना कंपलसरी है, तो साइन 270 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos 270 माइनस थीटा इज नोन एज माइनस sin थीटा। 10 70 माइनस थीटा को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 10 का कोट हो जाएगा, तो इट विल बी नोन एज द cot थीटा। अब देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ प्लस होना है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और साइन का 90 आगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos का क्या हो जाएगा, sin थीटा, 10 का क्या हो जाएगा, cot थीटा। अब देखो 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ पे आएगा माइनस थीटा, अगेन यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, cos और sin पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सब कुछ नेगेटिव होता है, ये तो आपको पता चल गया। और 360 है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos 360 माइनस थीटा इज नोन एज द प्लस cos थीटा, tan 360 माइनस थीटा इज नोन एज द माइनस tan थीटा। For any function y equal to fx, what is the condition for the maximum value and what is the condition for minimum value? All of you know very well, either maximum हो या minimum हो, दोनों के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या होगा, जीरो। तो you will say for both of the situation dy by dx that is the first order derivative that must be zero। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। नो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर मिनिमा के आगे जाते हो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी मिनिमा का जब भी सवाल आएगा तो आप क्या लिखोगे, d2y by dx स्क्वायर, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। मैक्सिमा के देखो, मैक्सिमा के आगे चलते हो तो नेगेटिव आता है स्लोप, तो यू विल से for the maxima d2y by dx square that is the double derivative, it must be negative। Average of the varying quantity y equal to fx, y is a function of the x, जैसे जैसे x चेंज कर रहे हो वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है from the x1 to x2। So all of you say this is the average value, sometimes can be written as the y bar also, it is written as the y dx upon integration dx, और x की वैल्यू लगा देना x1 से x2, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट कर देना आप x1 to x2, and then you will get the value of the average quantity। Area of the ellipse basic formula, this is the ellipse and this is major axis, this is minor axis, this is known as a semi major axis and this is known as a semi minor axis। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई a इंटू बी। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ तो आपके लिए थोड़ा चीजें आसान हो जाएगी समझना। A5 से दिस इज द एलिप्स एंड this distance is given to you 30 centimeter and this height is given to you 14 centimeter। आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना, पाई ए बी। पाई की जगह तो आप क्या लिखोगे, 22/7। ए सेमी मेजर एक्सिस, ये पूरा 30 था तो हाफ कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। ये पूरा कितना है 14, तो हाफ कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा तो यू विल गेट 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर द एरिया ऑफ एलिप्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, अगर आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी आपको रेडियस गिवन है r, हाइट गिवन है आपको h, तो टोटल सरफेस एरिया में दो तो देखो, ऊपर का एक सरफेस हो गया सर्कुलर और नीचे का एक सर्कुलर सरफेस हो गया। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर और नीचे दो सर्कुलर एरिया तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। और देखो ये आपका एक कर्व सरफेस है,
जो मैं रेड जोन से दिखा रहा हूँ आपको। और कर्व का सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच। तो अगर आप 2 पाई आर कॉमन लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आर प्लस एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज द 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, लेट आई से दिस इज द डिजाइन ऑफ द कोन। इस कोन का जो हाइट है वो हमको एच दे रखी है और रेडियस हमें आर दे रखी है। तो देखो एक तो प्लेन सरफेस हो गया जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, तो प्लेन कर्व सरफेस का सर्कुलर सरफेस का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। उसका पूरा देखो एक कर्व सरफेस है और कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है पाई आर एल। तो आप पाई आर कॉमन ले लोगे, पाई आर एच सॉरी, पाई आर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच गया आर प्लस एच। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज नोन एज द पाई आर एंड ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे आर प्लस एच। अच्छा कभी कभी आपसे स्लैंट हाइट पूछ सकता है एल, तो आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एल की वैल्यू कैसे निकालोगे रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय द यूज ऑफ द पाइथागोरस। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल हैविंग रेडियस आर एंड सेंटर एंगल थीटा इज इन रेडियन ऑफ द डिग्री सॉरी। तो पहली सिचुएशन में आपको जो सेंट्रल एंगल डिग्री में दिया है, इसका लॉजिक क्या सोचोगे, अगर आप पूरा सर्किल मानो तो एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर रेडियस आर है तो देखो 360 डिग्री का जो एरिया आएगा कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का कितना आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और अगर आपका एंगल थीटा में गिवन है थीटा डिग्री, तो आंसर कितना आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा डिग्री। तो फर्स्ट वाले का तो आंसर आप डायरेक्ट लिख दोगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड सिचुएशन में देखो आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द सर्किल और एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्किल हैविंग सेम रेडियस आर बट सेंट्रल एंगल थीटा इज गिवन इन रेडियन। उसकी आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, यू हैव टू थिंक दिस इज द जस्ट ट्रायंगल। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यू कैन राइट इट इज गिवन बाय हाफ बेस इज गिवन बाय आर एंड दिस डिस्टेंस वी कैन इजीली मेजर थीटा इज गिवन बाय आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ को आप क्या बोलोगे, आर्क लेंथ विल बी रिटन एज आर इंटू थीटा। तो इट इज रिटन एज आर इंटू थीटा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियन में तो कैसे निकालोगे, डिग्री में कैसे निकालोगे, देयर आई विल डिस्कस विद यू। a प्लस बी का होल क्यूब विल बी रिटन एज द a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। सिमिलरली a माइनस b का होल क्यूब सब जगह माइनस लगा दो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में भी लिख दो a माइनस b। टेम्परेचर द एनटीपी एसटीपी, इसमें आपको कंफ्यूजन मिल सकता है क्योंकि कहीं कहीं पे इसके बारे में कुछ गलत लिखा हुआ है। एनटीपी एसटीपी एक ही बात है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एक ही बात है। सेल्सियस में आप क्या लिखोगे 0 डिग्री सेल्सियस और एसटीपी में क्या लिखोगे 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में आप क्या कर लोगे 273 केल्विन अप्रोक्सीमेटली एंड हियर आल्सो 273.15 होता है पर हम लोग 273 केल्विन लिख रहे हैं। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में सभी लोग जानते हो मेन स्केल होता है, ये आपका मेन स्केल होता है और यहाँ पे एक वर्नियर पार्ट होता है जो मूवेबल होता है। तो बेसिक देयर आर टू फॉर्मूलाज फॉर द लिस्ट काउंट। वन इज द लिस्ट काउंट इज गिवन बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द मेन स्केल, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। जनरली आपका मेन स्केल किसमें होता है मिलीमीटर में और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है 1 मिलीमीटर। और जनरली टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल वर्नियर स्केल पे कितने होते हैं 10। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 लिखोगे तो क्या आएगा 0.1 मिलीमीटर। आपको सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करनी होती है तो आप इसको क्या कर सकते हो 0.1 डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.01 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लिस्ट काउंट, वन ऑफ द वे ऑफ द कैलकुलेशन द लिस्ट काउंट। सो फॉर द सेकंड मेथड ऑफ द लिस्ट काउंट आई विल एक्सप्लेन हियर। जनरली जो आपका वर्नियर है इसके 10 डिविजन्स होते हैं, ये मेन स्केल के 9 डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। यानी आप लोग कह सकते हो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन की जनरली वैल्यू कितनी होती है 1 मिलीमीटर। ये तो मैंने यहाँ पे लिखी थी आप लोगों के लिए। तो लिस्ट काउंट का बेसिक फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे 1 MSD दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD दैट इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर। Then what is the value of the 1 vernier scale division? यहाँ से लिखोगे 1 vernier scale division is written as the 9/10 main scale division और 1 main scale division 1 मिलीमीटर तो क्या लिखोगे इसको 9/10 मिलीमीटर और you can write it as 0.9 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ से वैल्यू लिख देता हूँ 1 vernier scale division is written as 0.9 मिलीमीटर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस 0.9 इज 0.1 मिलीमीटर। तो देखो सेम ही आंसर आ गया 0.1 मिलीमीटर। सो 0.1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। सो यू कैन यूज दिस मेथड और दिस मेथड, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन विच मेथड इज रिक्वायर्ड। टोटल रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर बेसिक फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग
प्लस वर्नियर रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। एक फॉर्मूला तो आप ये यूज करोगे, कॉमन फॉर्मूला, सबसे ज्यादा आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। वन मोर फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड, वो कभी कभी आपको यूज करना पड़ जाएगा। जहां पे लिस्ट काउंट नेगेटिव आता है वहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ। थोड़ा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज दिस इज योर मेन स्केल रीडिंग, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और सपोज वर्नियर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 है, और मैं मान लेता हूँ ये 8th डिवीजन है और ये 9th डिवीजन है, यानी यहाँ पे वैल्यू आप क्या बोलोगे 2.8 और यहाँ पे वैल्यू आप क्या बोलोगे 2.9। तो देखो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो मेन स्केल की वैल्यू क्या लिखते हो तुम लोग 2.8, लेकिन नेगेटिव लिस्ट काउंट है तो मेन स्केल क्या लिखोगे, आगे वाला मेन स्केल लिखते हो। तो आगे वाला कौन सा आ रहा है 2.9, तो यहाँ पे मेन स्केल कितना आ गया 2.9। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला इज नोन एज द मेन स्केल, दैट इज नेक्स्ट मेन स्केल बोल दो आप, माइनस लिस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट मेन स्केल क्या आ रहा है 2.9, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2.9 माइनस लिस्ट काउंट, अगर मैं लेता हूँ 0.01 कैलकुलेट सेंटीमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर मेरा लिस्ट काउंट हो गया। अब मान लो वर्नियर की डिवीजन से, वर्नियर का ये आपका 5th डिवीजन है, देन 6th डिवीजन, देन 7th डिवीजन, और मान लो 7th ऊपर से कोइंसाइड हो रहा है, तो वर्नियर का कौन सा कोइंसाइड हो रहा है 7, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, और आप लोग कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर क्या आएगा 2.9 माइनस 0.07, इट इज गिवन बाई 2.83 सेंटीमीटर। अच्छा कहीं कहीं पे इसको इस तरह से भी देख सकते हो आप लोग। कैसे देखोगे इसको, मेन स्केल रीडिंग जो पहले लेते थे वो ले लो पीछे वाली, प्लस टोटल वर्नियर पे कितने डिवीजन है 10, कौन सा कर रहा है 7th, इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.01, तो मेन स्केल डिवीजन पहले वाला ले लो पीछे वाला 2.8 प्लस 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, इंटू लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.01, तो देखो आप कैलकुलेट करोगे सेम आंसर आएगा 2.83 सेंटीमीटर। सो मेनली आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, मेन स्केल प्लस वर्नियर रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट, पर कभी लिस्ट काउंट नेगेटिव आ जाए किसी सवाल में, एट दैट मोमेंट यू हैव टू थिंक द फॉर्मूला नंबर 2। लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज इज बेसिक फॉर्मूला है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या होता है, एक रोटेशन में कितना लीनियर स्केल मूवमेंट होता है वो होता है आपका पिच, और जनरली कितना होता है 1 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे जनरली कितने होते हैं 100, तो दोनों को डिवाइड करोगे लिस्ट काउंट जनरली कितना आएगा 0.01 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में करोगे तो 10 से डिवाइड कर दोगे, इट विल बी 0.001 सेंटीमीटर। टोटल रीडिंग ऑफ द स्क्रू गॉज, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या लिखोगे, टोटल रीडिंग is known as the main scale reading plus circular reading into list count। मैं आइडिया दे देता हूं आपको। सपोज आपका मेन स्केल है और यहाँ से आपका सर्कुल स्टार्ट हो रहा है, और ये सपोज आपका 20 है, और यहाँ पे आते 1 2 3 और ये 4 इससे टच हो रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी लिखोगे यहाँ पे 24 मिलीमीटर। अब सर्किल में लगा लेते हैं, मान लो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे मान लो 70 है, और बीच में आ रहा है 65, तो सर्कुलर रीडिंग कौन से कौन साइड हो रही है स्ट्रेट लाइन से 65 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट अगर आपको मिलीमीटर में लिखना तो कितना लिखना था 0.01 मिलीमीटर, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 24.65 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय स्फेरोमीटर फॉर्मूला होता है आपका R इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 6H प्लस H अपॉन 2। L क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स, तो यू विल से L इज नोन एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स। बेसिकली स्फेरोमीटर में आपको पता 3 लेग्स होती है, जैसे आप किसी पेपर पर लगाओगे 3 पॉइंट मिल जाएंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, किन्हीं भी 2 लेग के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं L। और H क्या होता है, H होता है सजीटा। सजीटा क्या होता है, अगर आप सपोज आपका स्क्रू है, ये सेंटर में स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, और ये सपोज प्लेन सरफेस पे लगा हुआ है, थोड़ा उसको मैं रीडिजाइन कर देता हूँ स्क्रू को, तो ये आपका स्क्रू देखो, और सपोज ये प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, सेंटर वाले लेग की बात कर रहे हैं। अब अगर कर्व सरफेस ऐसा होगा तो स्क्रू नीचे जाएगा, कर्व सरफेस ऐसा होगा तो स्क्रू ऊपर आएगा। सपोज मैंने कर्व सरफेस ऐसा ले लिया तो पक्का स्क्रू का जो लेवल है ऊपर चला जाएगा। अभी कितना ऊपर जा रहा है, इट इज नोन एज द सजीटा, जिसको हम लोग H भी बोलते हैं फॉर्मूले में, एंड इट इज नोन एज द H। So main formula is known as R equal to L square by 6H plus H by 2. What is the sagitta? Sagitta of the spirometer is the distance of the central probe that is raised or lowered when the spirometer is moved from the flat surface to the curved surface.